بہت ہو گیا، اب ختم کرو. صبح سے اس گھر میں یہی چل رہا ہے. ارے قصے کو تو آپ لوگ نہیں ختم کر رہے اور نہ رشتے کو ختم کریں. اتنے زیادہ کپڑے، بیگ خرید کیوں بھائی؟ وہاں پہ تو اتنی سردی پڑتی ہے، یہ کپڑے تو کم پڑ جائیں گے مرزا جی. ارے ہم تو 2-3 روز کے لیے جا رہے ہیں، کپڑے دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ 2-3 ہفتوں کے لیے جا رہے ہیں. مرزا جی ایک بڑا بیگ بھی ہے جس میں موزے، شالیں، سویٹر اور سردی کے سارے کپڑے ہیں. کچھ تحفے بھی خرید لیں گے، سنا ہے وہاں چیزیں سستی ملتی ہیں. تحفے کس کے لیے؟ رشتہ داروں کے لیے. میرا تو ایسا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جس کو میں پیسے خرچ کر کے گفٹ دوں. تمہارے ہو سکتے ہیں. توبہ کریں مرزا جی، میرے بھائی بھابھی تو کبھی منہ سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں. اسی لیے کہتا ہوں کہ کم بولا کرو، زیادہ سنا کرو، اور سوچنے کی صلاحیت تو تمہیں ہے نہیں. اتنا ڈھیر سارا کاجل کیوں لگایا ہوا ہے؟ آپ کے لیے. لگ رہا ہے کسی کا کلیجہ کھا کے آئی ہو. اتارو یہ، ہٹاؤ یہاں سے. اور برقع ہے تمہارے پاس؟ برقع؟ نہیں، برقع کہاں سے آیا؟ برقعے کی جگہ کفن پہناؤں گی میں تجھے مرزا، ورنہ میرا نام نیلم پری نہیں. پہاڑ کی آخری گھنٹی. ایک چھوٹے سے گاؤں کے اوپر ایک بلند پہاڑ تھا. اس کی چوٹی پر ایک قدیم گھنٹی لگی ہوئی تھی جو صرف اس وقت بجتی جب گاؤں کو کسی بڑے فیصلے کی ضرورت ہوتی. ایک رات اچانک گھنٹی زور سے بجنے لگی. گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے. 17 سالہ سمی نے پہاڑ پر جانے کا فیصلہ کیا. وہ مشکل راستے سے گزرتا ہوا چوٹی تک پہنچا. وہاں اسے گھنٹی کے نیچے ایک پرانی کتاب ملی. کتاب میں لکھا تھا، جب سب راستے مشکل لگیں تو وہ راستہ چنو جس سے سب کو فائدہ ہو. سمی نے کتاب اٹھائی اور واپس گاؤں آ گیا. اسی وقت گاؤں میں ایک مسئلہ تھا. پانی کا واحد چشمہ خشک ہو رہا تھا اور لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ پانی کس خاندان کو ملنا چاہیے. سمی نے سب کو جمع کیا اور کہا، اگر ہم پانی تقسیم کرنے کے بجائے مل کر نیا راستہ بنائیں تو سب کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. لوگوں نے اس کی بات مان لی. سب نے مل کر پہاڑ سے ایک نیا پانی کا راستہ بنایا. کچھ دن بعد چشمے کا پانی پورے گاؤں تک پہنچنے لگا. اگلی رات پہاڑ کی گھنٹی دوبارہ بجی، مگر اس بار صرف ایک مرتبہ. سمی نے مسکرا کر کہا، شاید گھنٹی ہمیں ڈرانے نہیں، صحیح فیصلہ کرنے کی یاد دلانے آئی تھی. سبق: مشکل وقت میں صرف اپنے فائدے کے بجائے سب کے فائدے کا سوچنا بہترین راستہ تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے. ستارہ. پہاڑ کی آخری گھنٹی. ایک چھوٹے سے گاؤں کے اوپر ایک بلند پہاڑ تھا. اس کی چوٹی پر ایک قدیم گھنٹی لگی ہوئی تھی جو صرف اس وقت بجتی جب گاؤں کو کسی بڑے فیصلے کی ضرورت ہوتی. ایک رات اچانک گھنٹی زور سے بجنے لگی. گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے. 17 سالہ سمی نے پہاڑ پر جانے کا فیصلہ کیا. وہ مشکل راستے سے گزرتا ہوا چوٹی تک پہنچا. وہاں اسے گھنٹی کے نیچے ایک پرانی کتاب ملی. کتاب میں لکھا تھا، جب سب راستے مشکل لگیں تو وہ راستہ چنو جس سے سب کو فائدہ ہو. سمی نے کتاب اٹھائی اور واپس گاؤں آ گیا. اسی وقت گاؤں میں ایک مسئلہ تھا. پانی کا واحد چشمہ خشک ہو رہا تھا اور لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ پانی کس خاندان کو ملنا چاہیے. سمی نے سب کو جمع کیا اور کہا، اگر ہم پانی تقسیم کرنے کے بجائے مل کر نیا راستہ بنائیں تو سب کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. لوگوں نے اس کی بات مان لی. سب نے مل کر پہاڑ سے ایک نیا پانی کا راستہ بنایا. کچھ دن بعد چشمے کا پانی پورے گاؤں تک پہنچنے لگا. اگلی رات پہاڑ کی گھنٹی دوبارہ بجی، مگر اس بار صرف ایک مرتبہ. سمی نے مسکرا کر کہا، شاید گھنٹی ہمیں ڈرانے نہیں، صحیح فیصلہ کرنے کی یاد دلانے آئی تھی. سبق: مشکل وقت میں صرف اپنے فائدے کے بجائے سب کے فائدے کا سوچنا بہترین راستہ تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے. ستارہ. پہاڑ کی آخری گھنٹی. ایک چھوٹے سے گاؤں کے اوپر ایک بلند پہاڑ تھا. اس کی چوٹی پر ایک قدیم گھنٹی لگی ہوئی تھی جو صرف اس وقت بجتی جب گاؤں کو کسی بڑے فیصلے کی ضرورت ہوتی. ایک رات اچانک گھنٹی زور سے بجنے لگی. گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے. 17 سالہ سمی نے پہاڑ پر جانے کا فیصلہ کیا. وہ مشکل راستے سے گزرتا ہوا چوٹی تک پہنچا. وہاں اسے گھنٹی کے نیچے ایک پرانی کتاب ملی. کتاب میں لکھا تھا، جب سب راستے مشکل لگیں تو وہ راستہ چنو جس سے سب کو فائدہ ہو. سمی نے کتاب اٹھائی اور واپس گاؤں آ گیا. اسی وقت گاؤں میں ایک مسئلہ تھا. پانی کا واحد چشمہ خشک ہو رہا تھا اور لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ پانی کس خاندان کو ملنا چاہیے. سمی نے سب کو جمع کیا اور کہا،
अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फ़ायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फ़ायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फ़ायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए।
17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक, मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा, पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक, मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा, पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक, मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा, पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा,
शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फ़ायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फ़ायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फ़ायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फ़ायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था।
पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फ़ायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फ़ायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फ़ायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था।
اس کی چوٹی پر ایک قدیم گھنٹی لگی ہوئی تھی جو صرف اس وقت بجتی جب گاؤں کو کسی بڑے فیصلے کی ضرورت ہوتی۔ ایک رات اچانک گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے۔ 17 سالہ سمی نے پہاڑ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مشکل راستے سے گزرتا ہوا چوٹی تک پہنچا۔ وہاں اسے گھنٹی کے نیچے ایک پرانی کتاب ملی۔ کتاب میں لکھا تھا، جب سب راستے مشکل لگیں تو وہ راستہ چنو جس سے سب کو فائدہ ہو۔ سمی نے کتاب اٹھائی اور واپس گاؤں آ گیا۔ اسی وقت گاؤں میں ایک مسئلہ تھا۔ پانی کا واحد چشمہ خشک ہو رہا تھا اور لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ پانی کس خاندان کو ملنا چاہیے۔ سمی نے سب کو جمع کیا اور کہا، اگر ہم پانی تقسیم کرنے کے بجائے مل کر نیا راستہ بنائیں تو سب کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ سب نے مل کر پہاڑ سے ایک نیا پانی کا راستہ بنایا۔ کچھ دن بعد چشمے کا پانی پورے گاؤں تک پہنچنے لگا۔ اگلی رات پہاڑ کی گھنٹی دوبارہ بجی، مگر اس بار صرف ایک مرتبہ۔ سمی نے مسکرا کر کہا، شاید گھنٹی ہمیں ڈرانے نہیں، صحیح فیصلہ کرنے کی یاد دلانے آئی تھی۔ سبق: مشکل وقت میں صرف اپنے فائدے کے بجائے سب کے فائدے کا سوچنا بہترین راستہ تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ستارہ ستارہ، پہاڑ کی آخری گھنٹی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے اوپر ایک بلند پہاڑ تھا۔ اس کی چوٹی پر ایک قدیم گھنٹی لگی ہوئی تھی جو صرف اس وقت بجتی جب گاؤں کو کسی بڑے فیصلے کی ضرورت ہوتی۔ ایک رات اچانک گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے۔ 17 سالہ سمی نے پہاڑ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مشکل راستے سے گزرتا ہوا چوٹی تک پہنچا۔ وہاں اسے گھنٹی کے نیچے ایک پرانی کتاب ملی۔ کتاب میں لکھا تھا، جب سب راستے مشکل لگیں تو وہ راستہ چنو جس سے سب کو فائدہ ہو۔ سمی نے کتاب اٹھائی اور واپس گاؤں آ گیا۔ اسی وقت گاؤں میں ایک مسئلہ تھا۔ پانی کا واحد چشمہ خشک ہو رہا تھا اور لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ پانی کس خاندان کو ملنا چاہیے۔ سمی نے سب کو جمع کیا اور کہا، اگر ہم پانی تقسیم کرنے کے بجائے مل کر نیا راستہ بنائیں تو سب کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ سب نے مل کر پہاڑ سے ایک نیا پانی کا راستہ بنایا۔ کچھ دن بعد چشمے کا پانی پورے گاؤں تک پہنچنے لگا۔ اگلی رات پہاڑ کی گھنٹی دوبارہ بجی، مگر اس بار صرف ایک مرتبہ۔ سمی نے مسکرا کر کہا، شاید گھنٹی ہمیں ڈرانے نہیں، صحیح فیصلہ کرنے کی یاد دلانے آئی تھی۔ سبق: مشکل وقت میں صرف اپنے فائدے کے بجائے سب کے فائدے کا سوچنا بہترین راستہ تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ستارہ ستارہ، پہاڑ کی آخری گھنٹی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے اوپر ایک بلند پہاڑ تھا۔ اس کی چوٹی پر ایک قدیم گھنٹی لگی ہوئی تھی جو صرف اس وقت بجتی جب گاؤں کو کسی بڑے فیصلے کی ضرورت ہوتی۔ ایک رات اچانک گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے۔ 17 سالہ سمی نے پہاڑ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مشکل راستے سے گزرتا ہوا چوٹی تک پہنچا۔ وہاں اسے گھنٹی کے نیچے ایک پرانی کتاب ملی۔ کتاب میں لکھا تھا، جب سب راستے مشکل لگیں تو وہ راستہ چنو جس سے سب کو فائدہ ہو۔ سمی نے کتاب اٹھائی اور واپس گاؤں آ گیا۔ اسی وقت گاؤں میں ایک مسئلہ تھا۔ پانی کا واحد چشمہ خشک ہو رہا تھا اور لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ پانی کس خاندان کو ملنا چاہیے۔ سمی نے سب کو جمع کیا اور کہا، اگر ہم پانی تقسیم کرنے کے بجائے مل کر نیا راستہ بنائیں تو سب کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ سب نے مل کر پہاڑ سے ایک نیا پانی کا راستہ بنایا۔ کچھ دن بعد چشمے کا پانی پورے گاؤں تک پہنچنے لگا۔ اگلی رات پہاڑ کی گھنٹی دوبارہ بجی، مگر اس بار صرف ایک مرتبہ۔ سمی نے مسکرا کر کہا، شاید گھنٹی ہمیں ڈرانے نہیں، صحیح فیصلہ کرنے کی یاد دلانے آئی تھی۔ سبق: مشکل وقت میں صرف اپنے فائدے کے بجائے سب کے فائدے کا سوچنا بہترین راستہ تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ستارہ ستارہ، پہاڑ کی آخری گھنٹی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے اوپر ایک بلند پہاڑ تھا۔ اس کی چوٹی پر ایک قدیم گھنٹی لگی ہوئی تھی جو صرف اس وقت بجتی جب گاؤں کو کسی بڑے فیصلے کی ضرورت ہوتی۔ ایک رات اچانک گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے۔ 17 سالہ سمی نے پہاڑ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مشکل راستے سے گزرتا ہوا چوٹی تک پہنچا۔ وہاں اسے گھنٹی کے نیچے ایک پرانی کتاب ملی۔ کتاب میں لکھا تھا، جب سب راستے مشکل لگیں تو وہ راستہ چنو جس سے سب کو فائدہ ہو۔ سمی نے کتاب اٹھائی اور واپس گاؤں آ گیا۔ اسی وقت گاؤں میں ایک مسئلہ تھا۔ پانی کا واحد چشمہ خشک ہو رہا تھا اور لوگ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ پانی کس خاندان کو ملنا چاہیے۔ سمی نے سب کو جمع کیا اور کہا، اگر ہم پانی تقسیم کرنے کے بجائے مل کر نیا راستہ بنائیں تو سب کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ سب نے مل کر پہاڑ سے ایک نیا پانی کا راستہ بنایا۔
कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फ़ायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फ़ायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगीं तो वो रास्ता चुनो जिससे सबको फ़ायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़ पर जाने का फैसला किया। वो मुश्किल रास्ते से गुजरता हुआ चोटी तक पहुंचा। वहीं इसे घंटी के नीचे एक पुरानी किताब मिली।
किताब में लिखा था, जब सब रास्ते मुश्किल लगी तो वो रास्ता चुनूं जिससे सबको फायदा हो। समी ने किताब उठाई और वापस गांव आ गया। उसी वक्त गांव में एक मसला था। पानी का वाहिद चश्मा खुश्क हो रहा था और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि पानी किस खानदान को मिलना चाहिए। समी ने सबको जुमा किया और कहा, अगर हम पानी तकसीम करने के बजाय मिलकर नया रास्ता बनाएं तो सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। लोगों ने उसकी बात मान ली। सबने मिलकर पहाड़ से एक नया पानी का रास्ता बनाया। कुछ दिन बाद चश्मे का पानी पूरे गांव तक पहुंचने लगा। अगली रात पहाड़ की घंटी दोबारा बजी, मगर इस बार सिर्फ एक मर्तबा। समी ने मुस्कुरा कर कहा, शायद घंटी हमें डराने नहीं, सही फैसला करने की याद दिलाने आई थी। सबक: मुश्किल वक्त में सिर्फ अपने फ़ायदे के बजाय सबके फ़ायदे का सोचना बेहतरीन रास्ता तलाश करने में मदद देता है। सितारा सितारा। पहाड़ की आखिरी घंटी। एक छोटे से गांव के ऊपर एक बुलंद पहाड़ था। इसकी चोटी पर एक कदीम घंटी लगी हुई थी जो सिर्फ उस वक्त बजती जब गांव को किसी बड़े फैसले की ज़रूरत होती। एक रात अचानक घंटी ज़ोर से बजने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। 17 साला समी ने पहाड़